Experiment number 2, Hall effect and Hall coefficient. The aim of this experiment is to calculate the Hall voltage developed across the sample material. Here we have to calculate Hall coefficients and to do error analysis. Also calculate carrier concentration, drift velocity, mobility, conductivity of the given sample. Now we are using a specimen here as a indium arsenide. Now some of the parameters are already given. The thickness is 0.6 millimeter. You have and width is 2 millimeter and length is 5 millimeter. Now let us first see in short the theoretical background of Hall effect. As we know that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, strong magnetic field, so if the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, then electric field is produced there, and this phenomena is called as Hall effect. Now here in this experiment we are going to calculate or measure the Hall voltage. Here some of the observations, some data is given. The thickness of specimen capital T is given as 0.16 millimeter. Now we have to convert this into meter, and the conversion factor is into 10 to the power minus 3. So 0.16 into 10 raised to minus 3 meter. The width of specimen is 2 millimeter, which is given in table number 1. So again we are going to convert this into meter. So 2 into 10 raised to minus 3 meter. The area of cross section you have to calculate, that is A is equal to W into T. So you will write in rough like A is equal to width. Width is 2 into 10 raised to minus 3 and thickness is 0.16 into 10 raised to minus 3. Now with the help of calculator you will calculate this. Now see, we will use a calculator for this calculation. So how we will do 2 into 10 to the power. To the power के लिए हम क्या करेंगे, कैप वाला की प्रेस करेंगे, -3. So you can use -3 into 0.16 into 10 cap -3 equal to. So the answer is 3.2 into 10 raised to minus 8. We will write here 3.2 into 10 raised to minus 8 meter square. 3.2 into 10 raised to minus 8 meter square. Now the next parameter is magnetic current. So here in the magnetic power supply we have the values calibrated. So here we are going to take the value of magnetic current as a 2.5 ampere. So for 2.5 ampere the value is given as, I write here, we will get that from the table which is already given in the experimental setup. For a current 2.5 ampere the value of magnetic field is 5.17 kilo Gauss. 5.17 kilo Gauss. Now we have to do some conversion, as here the unit is Tesla. Standard unit for magnetic field or magnetic induction is Tesla. So see here what are the conversion factor. First of all, kilo Gauss to Gauss. So the conversion factor is into 10 to the power plus 3. It will be converted into Gauss. Now we have to convert from Gauss to Tesla. So the conversion factor is 5.17 into 10 raised to 3. From Gauss to Tesla we have to do 10 raised to minus 4. So this is the 10 raised to minus 4 is the conversion factor from Gauss to Tesla. So this will be plus 3 minus 4, so minus 1. So it will be 0.517 Tesla. So I will write here 0.517. You do all this calculation in the rough side, not on the front page. Now see, this is the experimental setup for the Hall effect experiment. Now here
This is a power supply. This is the power supply for electromagnet. From here, what I have said ना, some calibration is given here. ये जो चीट है इसी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट और उसका मैग्नेटिक फील्ड का कैलिब्रेशन इस चीट पर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो वी पिक्ड द वन वैल्यू 2.5 एम्पियर करंट और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड थी वी हैव टेकन फ्रॉम हियर. फॉर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक करंट वी हैव दिस नॉब. हमारे पास यहाँ पर ये एक नॉब है. इसकी हेल्प से हम यहाँ पे से एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे. नाउ फ्रॉम दिस नॉब, ये क्या है? नॉब है जिसे हम इस नॉब को घुमाएंगे. तो क्या करेंगे? इस नॉब के हेल्प से यहाँ पे इंडिकेटर है तो वैल्यू ऑफ करंट वी विल चूज. मैग्नेटिक करंट हम यहाँ से चूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब. इस नॉब को आप इस तरह से यहाँ पे मूव करोगे. ओके, स्लोली. सो हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट हमने एक सैम्पल वैल्यू ली थी मैग्नेटिक करंट एज ए 2.5 एम्पियर. तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना आ जाएगा. ओके, ये जो है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड हियर देयर इज, ये जो स्टैंड है यहाँ पे बीच में एक स्पेसिमन है. यहाँ पे हम इंडियम आर्सेनाइड का स्पेसिमन यूज कर रहे हैं. उस स्पेसिमन को हमने क्या किया है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जैक्टली मिडल में प्लेस किया हुआ है. सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द specimen and the magnetic field is perpendicular to the current carrying conductor. So as per Hall effect, Hall voltage or we can say electric field is produced and induced here, which we are observing or measuring in terms of Hall voltage. Next part of this experiment is a constant current source. So from here you can see यहाँ पे जो probe था वो जो हमने स्पेसिमन लगाए थे वहाँ से प्रोब्स निकल रहे हैं 4. थ्रू दिस वायर दिस प्रोब्स आर कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट किए हैं और 2 पॉइंट वहाँ पे कनेक्ट किए हैं. सो ये हमारा वोल्टेज मेजर करेगा और यहाँ से हम करंट मेजर करेंगे. सो फ्रॉम हियर आपण काय करणार आहोत की करंटच्या व्हॅल्यूज व्हॅरी करणार आहोत 0.5 एम्पियरने आणि हॉल व्होल्टेज हा मेजर करणार आहोत. सो वी विल टेक द वैल्यू वैरी द वैल्यूज ऑफ करंट फ्रॉम 0, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर एंड सो ऑन. इन दिस वे वी आर गोइंग टू टेक 10 रीडिंग्स. एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी हॉल इफेक्ट एंड टू डिटरमाइन हॉल पैरामीटर्स. तो इसमें देखो सबसे पहले ये है पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये है पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ये है कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई. यहाँ से हम वोल्टेज और करंट को मेजर करने वाले हैं. नाउ सी हियर ऑन दिस बोर्ड देयर इज़ अ स्पेसिमन. हियर इज़ अ स्पेसिमन. इसके ऊपर स्पेसिमन लगा हुआ है. अब हम इसको क्या कर रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में उसको होल्ड करके रखा हुआ है. दिस इज़ द स्टैंड विच होल्ड्स दिस बोर्ड एंड ऑन दिस बोर्ड देयर इज़ अ स्पेसिमन. First of all, what we will do, we'll take a value of current from here. By first we start the switch on this power supply and that power supply. अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? एक मैग्नेटिक करंट का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं मैग्नेटिक करंट के और उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है कैलिब्रेट किया हुआ है ऑलरेडी. सपोज वी चूज़ द वैल्यू ऑफ 1 एज ए मैग्नेटिक करंट. तो हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब हम इसको स्विच ऑन करेंगे एंड देन वी विल select it with the help of this knob for 1 ampere. So this is the magnetic current. For this magnetic current the value is 1.93 kilo Gauss. Now because of this
magnetic field. This magnetic current, a magnetic field is produced which is perpendicular to the current carrying conductor, and as per Hall effect, here the field is produced which is perpendicular to both electric current and magnetic field. So this, with the help of this constant current power supply, we will measure the Hall voltage generated here. Okay, so what we will do, we will vary this current. For the convenience, we will vary the current from 0 to 0.5. सबसे पहले हम इसको 0.5 करेंगे. At 0.5 current, the value of Hall voltage is 0.3 millivolt. We'll record this in our table. Then we'll increase this in the steps of 0.5. That अगली रीडिंग हम लेंगे 1 मिली एम्पियर पे हमारा हॉल वोल्टेज है 0.7 मिली वोल्ट. Then we'll go for 1.5. 1.5 पे वैल्यू है 1.2 मिली वोल्ट. इन दिस वे वी विल वेरी दिस करंट अप टू 5 मिली एम्पियर. ये हम 5 मिली एम्पियर पे हर 0.5 मिली एम्पियर पे हम वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते जाएंगे अप टू, एंड विल इंक्रीज दिस करंट अप टू 5 पे जो वैल्यू आती है हम ले लेंगे. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 वैल्यूज वी विल टेक फॉर डिफरेंट करंट. व्हाट आर द हॉल वोल्टेजेस? सो दिस इज द टेबल. इसमें हमको ये ऑफलाइन ही कर रहे हैं हम. नाउ दिस इज द टेबल. तो हमारी जो मेथड है हम लोग ऑफलाइन मेथड ही यूज़ किए हैं. सो फर्स्ट इज अ प्रोब करंट. हमने प्रोब करंट को वैरी किया है और हमने हॉल वोल्टेज मेजर किया है. नाउ ये मिली वोल्ट में है और ये भी मिली एम्पियर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 10⁻³ एम्पियर में, है ना. और ये भी मिली वोल्ट के बजाय हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे इनटू 10⁻³ वोल्ट. तो ये वोल्टेज में और ये करंट एम्पियर में. अभी हमारा सबसे पहला वैल्यू है सपोज 0.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आपका कोई वैल्यू आएगा सपोज 2 वोल्ट. ये जस्ट सैम्पल वैल्यूज है, हमको कैलकुलेशन देखना है इसलिए. उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1.0 एडजस्ट करेंगे और विल ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ होल वोल्टेज. सपोज दिस विल बी 2.5 वोल्ट इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ एंड सो ऑन. 1.5 इंटू 10⁻³ एंड सो ऑन. ये हमारा वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा. जो भी हमारा 10th वैल्यू रहेगा सपोज 5 एम्पियर तक आ जाएगा. ये 5 इंटू 10⁻³ सो इन दिस वे हाफ एम्पियर के स्लॉट में हम पूरा वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पे पूरा वोल्टेज का वैल्यू जो भी रहेगा वो हम ऑब्जर्व करके लिख लेंगे. नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितना करंट है ना यहाँ पे मीन करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे. मीन करंट आई, इसको हम नाम दे रहे मीन प्रोब करंट आई. मीन मतलब ये सारा 10 का हम एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, विल गेट अ वैल्यू ऑफ आई मीन. सिमिलरली ये जितना भी वोल्टेज का वैल्यू है इन सभी का हम क्या करेंगे, मीन वोल्टेज निकाल देंगे. VH ये हॉल वोल्टेज है लेकिन इसका हम पूरा मीन निकालेंगे. ये वोल्ट में रहेगा और ये एम्पियर में रहेगा. नाउ अभी हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. प्रोब करंट वर्सेस हॉल वोल्टेज. अभी ये भी वोल्ट में ही है, ये वोल्ट में है और ये इन एम्पियर है. तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी 10 वैल्यूज़ है उनको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे. इस ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे और कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स में से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. उस पर एक छोटा ट्रायंगल लेंगे, उसके पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे. इसको नाम देंगे x1 y1, इसको नाम देंगे x2 y2. वेरी सिंपल रूल. And we'll calculate the slope with a simple formula. Slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. It's a very simple formula to calculate the slope.
तो हम सबसे पहले जब हमारा रीडिंग हो जाएगा हम स्लोप निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे और ग्राफ के बाद हमको स्लोप निकालना है। अभी हमको क्या करना है, तुम यहीं पे आ जाओ। सपोज अभी आपने स्लोप निकाला, लेट अस सपोज स्लोप का वैल्यू है आपका 30 वोल्ट पर एम्पियर, ये आपका वैल्यू आ गया। अब आपको एक एक करके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। सो सबसे पहला पैरामीटर है हॉल कोएफिशिएंट RH। तो RH इज इक्वल टू स्लोप इंटू T/B। तो स्लोप का वैल्यू है आपका 30 इंटू थिकनेस, आपको याद है थिकनेस कितना लिया था हमने, 0.16। अभी यहाँ पर याद रखेंगे जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है वो वैल्यू लेंगे, 0.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय B मैग्नेटिक फील्ड 0.517 टेस्ला। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। भी जरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले स्लोप का वैल्यू है 30 इंटू 0.16 इंटू 10⁻³ सो 10 कैप -3 फिर डिवाइडेड बाय 0.517 इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू हॉल कोएफिशिएंट 9.28 इंटू 10⁻³ अभी 28 के बाद 4 है इसलिए हम इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे, अदरवाइज हमको इसको राउंड ऑफ करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। सो हॉल कोएफिशिएंट RH इज इक्वल टू 9.28 इंटू 10⁻³ The unit is coulomb per meter cube. Okay, so in this way we calculate Hall coefficient. Now the next parameter is carrier concentration, N is equal to 1 divided by RH into E per meter cube. E क्या है, it is charge on electron, that is 1.6 into 10⁻19 coulomb. Now अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसमें डालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय RH, यहाँ पे से जो हमने कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 9.28 इंटू 10⁻³ इंटू ये E का वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। नाउ वी हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर में यूज़ करते वक्त ये बात बहुत ध्यान देंगे कि ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो सारा ऑपरेशन है हमको पूरा करना है और ये एक अलग वैल्यू है और ये ब्रैकेट एक अलग वैल्यू और उन दोनों का डिवीजन लेना है, इसीलिए हमको ये ब्रैकेट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि प्रायोरिटी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी होती है, एंड दिस इज़ द पैरेंथेसिस विच इज़ यूज्ड टू सेट द प्रायोरिटी इन अ ऑपरेशन। तो इसीलिए आप ये बहुत ध्यान दोगे। अभी चलो हम ये करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, आई पुट ब्रैकेट हियर, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू, 9.28 इंटू 10 cap -3 into 1.6 into 10 cap -19 bracket close equal to, so the value is 6.7349. so आप 2 या 3 डिजिट लिख सकते हैं, 6.73, आई यूज 2, 3 के बाद 4 है तो इसलिए हम उसको एज इट इज़ डिस्कार्ड कर सकते हैं, इंटू 10⁻20, इसको नहीं भूलेंगे, पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पैरामीटर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I, ये I है, I डिवाइडेड बाय NEA, N फॉर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड A फॉर एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पे I कौन सा लेंगे हम, I मीन, याद है ना हमने टेबल में ही नीचे कैलकुलेट किया है, प्रोब करंट का मीन हमने कैलकुलेट किया है, दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक हियर, और एरिया हमने टेबल नंबर 2 में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो उस टेबल से हम मीन का वैल्यू निकाले हैं 2.725 एम्पियर, और टेबल नंबर 2 से हमने एरिया कैलकुलेट किया है 0.32 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। नाउ we will put these values in this formula. So 2. आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाना, हाँ।
द वैल्यू ऑफ n इज 6, पीछे वाला कॉलम से लेंगे हम 6.73 इंटू 10⁻20 इंटू वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू एरिया 0.32 इंटू 10⁻⁻6 ओके। अभी आपको याद है कि अगर ये कैलकुलेशन करना है तो आप ये 10 का वैल्यू सब ओरली भी कर सकते हो कि 1020 है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10⁻20, तो इन सब का हम मैथमेटिक रूल यूज़ करेंगे। ये 20, यहाँ पे क्या लिखा है -19, सो इट विल बी -19, और यहाँ पे है -6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं हम 20 - 19 1 -6 -5 +1 -6 इट इज -5, बराबर है, -5 10 तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या सरळ सरळ ह्याच्यात टाकून घ्यायचं है ना। देर इज़ नो नीड कि आप खुद से करो, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, पर आपको मेन हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 2.725 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 6.73, अभी हम ये छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ ले लिया है, इंटू 1.6 इंटू 0.32 इंटू, अभी मैं एक साथ लिख लूँ, ये क्या है 20 - 19 - 6, सो इट बिकम्स 10⁻⁻5, सो 10 कैप -5। ये मैं आपको सिर्फ बताई हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करो, यू कैन डायरेक्टली पुट दिस स्टेटमेंट इनटू दिस कैलकुलेटर। ब्रैकेट बंद करना ज़रूरी है यहाँ पर, इक्वल टू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो वैल्यू है करंट की, आई मीन इट इज 2.725 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। ये वैल्यू हमारी लिखना रह गई थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसा करूँ, इंटू 10⁻, ये आंसर क्या हमारा, इक्वल टू 7908.69, तो इसको मैं 7 करती हूँ इंटू 10⁻⁻3। भी यहाँ पे हम एक बार ये भी देख लेंगे कि 10⁻⁻3 तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो डेसिमल यहाँ पर है ना, इसको हम इस साइड में मूव करेंगे फॉर 3 डिजिट्स, ये 3 है ना, तो 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 79.08, बाकी के डिजिट छोड़ सकते हैं आप, और ये 10⁻³ गायब हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज मोबिलिटी। Formula for mobility is drift velocity into width divided by hall voltage. So अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका वैल्यू है 79.08। विड्थ हमारा टेबल नंबर 1 में मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, वो गिवन डेटा है। और हॉल वोल्टेज, डू यू रिमेंबर, हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट किया है, मीन हॉल वोल्टेज, दैट वैल्यू वी हैव टू टेक हियर। नाउ लिसन डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये मैंने सिर्फ एक सैम्पल वैल्यू ली है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वी आर टेकिंग दिस। तो चलो लिखेंगे, सो 79.08 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हॉल वोल्टेज 50 इंटू 10⁻³ आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम डिनोमिनेटर में एक से अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है तो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू पुट डेफिनेटली अ ब्रैकेट हियर। अगर सिंगल वैल्यू होगी, ब्रैकेट नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 10⁻³ और 10⁻³ कट हो जाएगा। सो लेट अस यूज आवर कैलकुलेटर। सो वी आर नॉट यूजिंग हियर राइटिंग दिस 2 टाइम्स, क्योंकि ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। सो 79.08 divided by 50, simple, 1.6
1.58 meter square per volt second. This is the mobility. Now we are towards the last value, that is conductivity. We have to calculate conductivity. So mu मतलब ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया है मोबिलिटी, और RH जो हमने सेकेंड इसी में सबसे ऊपर कैलकुलेट किया है हॉल कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू 9.28 इंटू 10⁻³ सो ये क्या हो जाएगा आपका 1.58 डिवाइडेड बाय 9.28 इंटू 10⁻³ अगेन यू रिमेंबर यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट हियर. फिर से करेंगे 1.58 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 9.28 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू. So this is the conductivity of the specimen 170. You can directly write 170 only mho per meter और Siemens per meter. You can write mho का सिंबल ऐसा होता है mho per meter. ये रेसिप्रोकल ऑफ ओहम है. आपका ओहम का सिंबल ऐसा होता है ना, ये उसका उल्टा है mho. That is like this. ओके डन. कैन यू डू दिस? तो जैसे ही आप ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा. रिजल्ट का कॉलम जितना भी हमने लिया है, हॉल कोएफिशिएंट, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है विथ प्रॉपर यूनिट. अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे. So this is all about your experiment number 2 to determine Hall effect and to calculate Hall coefficients.